हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद एवलिन। आज हम फर्स्ट फ्लाइट जो एनसीईआरटी की रीडर है क्लास 10 की, उसमें से करेंगे द बॉल पोम। बॉल पोम लिखी है जॉन बेरीमैन ने। ओके, जो ही वॉज एन अमेरिकन। ही वॉज बोर्न इन 1914 एंड ही पास्ड अवे इन 1972। ओके, जॉन बेरीमैन का जो पहले सरनेम था वो स्मिथ था, है ना, बट देयर वॉज an unfortunate incident that happened. Okay, his father committed suicide, shot himself just outside this boy's window when he was 12 years old. So this experience had a lasting impression on this boy. तो जॉन बेरीमैन के ऊपर वो जो ट्रैजिक इंसिडेंट उनके बचपन में हुआ, उनके फादर के सुइसाइड को जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया, उसका उनके ऊपर एज यू कैन अंडरस्टैंड बहुत ही बिटर एक्सपीरियंस था। और जो उसका जो इम्पैक्ट था वो पूरी लाइफ रहा इनके ऊपर, है ना। और फिर लेटर ऑन व्हेन हिज मदर री मैरिड, ही टुक द सरनेम ऑफ हिज स्टेप फादर एंड ही वॉज कॉल्ड जॉन बेरीमैन आफ्टर दैट। ठीक है, और ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ में एसोसिएटेड हैं, है ना। ही स्टडीड इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया एंड ही वर्कड इन अ लॉट ऑफ इन हार्वर्ड ऑल्सो। ओके, एंड ही वॉज also he worked in the University of Minneapolis till he ended his life. He also committed suicide by jumping into a river. He jumped off a bridge in winters, okay, in 1972, because he could not deal with the depression, and he was also struggling with alcoholism. So because of all these things, okay, his life and the poetry, the life and his poetry, you can see a glimpse of something that is dark, okay, and something painful. Okay, there is a sense of loss in his poems. ठीक है, अब इनके स्टाइल ऑफ पोइट्री कैसी है? He belongs to the confessional school of poetry. Anna Sexton also belonged to this school of poetry, so he belonged to this school of poetry. And his major works are The Dispossessed, which was published in 1948. Then he worked on the biography of Stephen Crane in 1950. ये वो वर्क्स हैं जॉन बेरीमैन के जिनको कि बहुत लिटरेरी अक्लेम मिल चुका है। Homage to Mistress Bradstreet, okay, published in 1956. 77 Dream Songs, published in 1964. Some places tells you that it was published in 1966 also, but I found that more places, more than one places suggested that it was published in 1964, but you can recheck. His Toy, His Dream, His Rest, this was published in 1968. अच्छा, एक हेनरी नाम का कैरेक्टर है जो बुक्स में रिकर होता है ना। एंड हेनरी इज अ डिरेंज्ड, है ना, मेंटली डिस्टर्ब्ड कैरेक्टर विच फीचर्स इन जॉन बेरीमैन्स पोएट्री, okay, again and again. And what else? Yes, he had won the Pulitzer Prize also for his writings. All right, so let us begin with the story, with the poem. A boy loses a ball. He is very upset. A ball doesn't cost much, nor is it difficult to buy another ball. है ना, बॉल तो easily available चीज़ है, तो क्यों वो बच्चा upset है? Why then is the boy so upset? Read the poem to see what the poet thinks he has been lost and what the boy has to learn from the experience of losing something. ठीक है, अब हम शुरू करते हैं poem. What is the boy now?
who has lost his ball. What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. So he is standing near the harbor. He is watching this boy playing with his ball, and he notices that the ball has bounced away from the child, from the boy, and it has gone into the water. Okay. So he asks us, this boy, this character here, this boy here is metaphorical. As the poem progresses, we'll know who this boy is. What does this metaphor stand for? So, what is the boy now who has lost his ball? मतलब कहने का ये है, immediately right in the first line he says, what is the boy now who has lost the ball? मतलब there is a sense of nothingness now. Now that the ball is lost, there is a sense of nothingness. ये नहीं बोल रहे हैं who is the boy now, where is the boy, नहीं, what is the boy now, क्या है वो अब जब उसकी बॉल खो गई है. तो as if this ball was everything that the boy stands for, or this ball defines the boy. ठीक है. फिर एक और क्यूरियस चीज़ यहाँ पे क्या की है इन्होंने, यहाँ पे क्वेश्चन तो पूछा है इधर, लेकिन यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है, बिकॉज दो he makes it sound like a question, he knows the answer, and we'll know what he knows about this. What is he to do now? What is he to do? अब क्या करेगा वो? I saw it go merrily bouncing down the street. तो बॉल को एक तरह से personify कर रहा है. The ball is merry. Can the ball be merry? No. But he says the ball is merrily bouncing, happily down the street. यहाँ पे एक one and only image of happiness आती है यहाँ पे. ठीक है. Down the street and then merrily over. और यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे ब्रेक हो गया है ना. बॉल बाउंस होती होती जा रही है, आप देख रहे हो, है ना. It's projecting a very happy image, and suddenly there is a break in the thought, because he witnesses that the ball has gone into the water. Now he's experienced, है ना. That is why he says, no use to say, oh, there are other balls. He says, will it be useful now? बच्चा जैसे ही रोता है, उसकी कोई चीज़ टूट जाती है, खिलौना टूट जाता है, आप उसी वक्त उसको समझाओगे? उस वक्त तो नहीं समझेगा. कुछ टाइम के बाद में जब वो रो लेगा, उसका मन हल्का हो जाएगा, उसके बाद समझेगा. तो ये बोलते हैं नो यूज़ टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स. आप क्या समझाते हो बच्चे को? जब बच्चा बॉल के लिए रो रहा होगा तो आप क्या बोलोगे? अरे हम दूसरी ले आएंगे, है ना. तो ये जानता है कि हमारी ये टेंडेंसी है, पर ये बोलता है नहीं, ये बोलने का अभी कोई मतलब नहीं है, ओ देयर आर अदर बॉल्स. क्यों? क्योंकि अभी द बॉय राइट नाउ इज इन द ग्रिप of a very novel and a very unique and a very strong experience. The boy is in the middle of a very novel and a unique and a singular experience. He has not experienced this before. तो ये जो बॉल खोने का ग्रीफ है ना, ये इस बॉय के लिए, इस बच्चे के लिए ये बहुत बड़ी बात है. ही इज़ फिक्स्ड इन हिज प्लेस, ही इज़ नॉट रनिंग आफ्टर द बॉल. मतलब ग्रीफ इतना ज़्यादा है कि वो बच्चा वहीं पे खड़ा हुआ कांप रहा है ना. एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग. देखो, फिक्सेस और रिजिड ये बता रहा है कि वो अपनी जगह पे जड़ हो गया है. ही इज़ नॉट मूविंग फ्रॉम देयर. Trembling, staring down all his young days into the harbor. अब हमको समझ में आता है कि बॉल किसके लिए मेटाफर है. जो भी चीज़ें हमारी पीछे छूट जाती हैं, हम भी तो, क्या हमारे बीता हुआ कल, क्या हमारा पास्ट, क्या हमारे यंग डेज, कैन वी गेट ऑल दीज बैक? नो. We can only stare at all these days that have gone into the harbor. Harbor stands for the past here, where his ball went.
ओके तो ये जो यंग डेज जैसे ही ये बोलना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि नहीं, ये एक इस इंसिडेंट के थ्रू ये हमको कुछ और सिखा रहे हैं. ये बोल रहे हैं कि ये बच्चा अभी ये सीख रहा है. When the child has lost his ball, through the loss of his ball, the child is learning, he is going through a new phase, a new learning. Okay? And this incident is a life-changing incident for this boy. He is going to learn valuable lessons through this loss. So he says, the child is staring. He's saying the boy is staring. He's trembling. He's staring, into the harbor where his ball is gone. I would not intrude on him. He does not want to water down that experience. He doesn't want to dilute that experience. He wants the child to grasp that experience. He wants the child to understand the emotions that the loss of the ball has awakened in him. He has not gone through this experience before. So he wants the child to savor in the sense, to turn this experience in his mind and to understand it properly, to learn what he can learn from him. तभी ये बोलता है मैं अभी इंट्रूड नहीं करूँगा. इंट्रूड मतलब क्या होता है? बिना इजाज़त कहीं पे चले जाना या किसी को स्पेस नहीं देना, है ना. तो ये बोल रहे हैं आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम. क्यों? आप उसको इंट्रूड करके आप उस बच्चे को जा करके उसको कंसोल करोगे. आप क्या कहोगे? आप बोलोगे ये लो बेटा एक कॉइन लो, दूसरी बॉल ले लेना, या आप दूसरी बॉल खरीद के ले जाके दे दोगे उस रोते हुए बच्चे को. बट ही इज टेलिंग यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर. ही सेज अ डाइम. डाइम है मतलब एक कॉइन, है ना. अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस. जब बच्चा रो रहा होगा तो आप किस चीज़ से उसको आप कंसोल करने की कोशिश करोगे? आप बॉल दे दोगे, है ना. आप इसको एक बच्चों को हम यूजुअली क्या देते हैं? एक छोटा टॉय दे देंगे, हम उसको कुछ और नई चीज़ ला देंगे या हम उसको चॉकलेट दे देंगे, है ना, मन बहलाने के लिए बच्चे का. लेकिन ये मन नहीं बहलाना चाहते यहाँ बच्चे का. ये बोलते हैं अ डाइम अनदर बॉल. और नहीं है यहाँ पे, उन्होंने कॉमा लगाया है, बट इनका मतलब है अ डाइम और अनदर बॉल इज़ वर्थलेस. कोई वैल्यू नहीं है. बच्चा अभी चुप तो हो जाएगा लेकिन ये जो सीख रहा है ये नहीं सीखेगा. तो क्या सीख रहा है? नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस. ये वर्ल्ड कैसा है? ये एक मटीरियल वर्ल्ड है. ओके, इट्स अ मटीरियल वर्ल्ड. समथिंग इज गॉन रॉन्ग विद दिस पेन नाउ. आई हैव डन सो मेनी पोम्स विद दिस. इट इज रन आउट ऑफ इंक. सो दिस इज अ मटीरियल वर्ल्ड. मतलब आप किस चीज़ से जाने जाते हो? आप अपने पोजेशंस से जाने जाते हो. आपकी क्या स्टेटस होती है सोसाइटी में, वो आपके पोजेशंस डिसाइड करते हैं. आप क्या क्या चीज़ के मालिक हो, उससे आपका स्टेटस, आपका जो मटेरियल पोजेशंस जो होते हैं वो आपका सोसाइटी में जो स्टेटस होता है वो डिफाइन करता है. वहीं एट द सेम टाइम हर चीज़ के ऊपर किसी न किसी ओनर का टैग होता है. अपार्ट फ्रॉम एयर, वाटर के ऊपर भी टैग हो ही गए हैं अलग अलग कंट्रीज़ के, सिटीज़ के, स्टेट्स के. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दीज फ्यू नेचुरल रिसोर्सेज एवरीथिंग हैज़ अ टैग, एवरीथिंग इज पोजेस्ड. तो ये क्या बोलते हैं? नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस. एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ही इज सेंसिंग. उसको पता चल रहा है कि उसको नेक्स्ट टाइम क्या होना पड़ेगा? रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पोम में कि दिस वर्ल्ड इज़ अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस. और आप अपने पोजेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगे तो आपको लॉन्ग लास्टिंग उसके कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़ेंगे. फिर ये आगे दूर से ही बोल रहे हैं ये. पीपल विल टेक बॉल्स
balls will be lost always, little boy. So there is repetition here. People will take balls. तो क्या बोल रहे हैं हमको कि कोई भी चीज़ को खोने का, जब हम कोई चीज़ चली जाती है हमारे पास से, कोई चीज़ चली जाती है, कोई पर्सन चले जाता है हमारे पास से, किस तरह से जाता है? या तो उसे कोई ले जाता है, people grab it, people snatch it from you, or it is gone. People die, things are taken away, or things are broken, or things are lost. ठीक है, तो ये बताते हैं, ये बच्चे के साथ में यहाँ पे सिंपैथी रखते हुए उसको बता रहे हैं, है ना, समझा रहे हैं। लेकिन ये न सिर्फ बच्चे को समझा रहे हैं, ये हम और रीडर्स को भी समझा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं पीपल विल टेक बॉल्स, लोग ले लेंगे, छीन लेंगे, या बॉल्स खो जाएंगी। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। तो व्हाट इज इट दैट द बॉल्स स्टैंड फॉर? The ball stands for your material possessions, everything that you own, whether it is, the people around you, the relations, or the material possessions. Everything will be lost. One or the other day, everything has to go. Everyone has to go. So he says, people will take balls, balls will be lost. Always, little boy. ये बता रहे हैं कि कितनी अफेक्शनेटली बोल रहे हैं, लेकिन ये किसको बोल रहे हैं? खुद को भी समझा रहे हैं और ये रीडर्स को भी समझा रहे हैं। एंड नो वन बॉय बाइज अ बॉल बैक। और ये बता रहे हैं कोई भी चीज़ जो एक बार चली जाती है वो वापस नहीं आती है। दैट सेम थिंग विल नेवर कम बैक। यू कैन बाय समथिंग विच इज सिमिलर, बट कैन दैट पर्सन, कैन दैट थिंग कम बैक? And no one buys a ball back. तो फिर कोई बोलता है, कोई सोच सकता है ना कि खरीदी भी तो जा सकती हैं, है ना, कि ये बोल रहे नो वन बाइज अ बॉल बैक, वही चीज़ तो नहीं आ सकती। और साथ ही साथ ये जैसे ही आपके मन में विचार आता है खरीदी जा सकती हैं कुछ चीज़ें, तो ये बोल रहे हैं मनी इज़ एक्सटर्नल। मनी की जो वैल्यू है ये बता रहे हैं लिमिटेड है। मनी इज़ एक्सटर्नल। ही इज़ लर्निंग well behind his desperate eyes. He can see from far that the child has such a helpless, desperate look on his face. Okay, ये बोल रहे हैं सीख रहा है, because now maybe the boy is coming to terms. The boy has accepted the fact that the ball is gone now. है ना? किसी चीज़ की एक्सेप्टेंस जल्दी आती है, किसी की धीरे आती है, लेकिन आती ज़रूर है। तो ये बोलते हैं ना, टाइम इज़ अ ग्रेट हीलर। सो ही इज सेइंग ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। ओके, द अंडरस्टैंडिंग दैट एवरीथिंग, एपिस्टेमोलॉजी होता है अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉस, व्हाट इट मीन्स टू लूज समथिंग। दिस इज़ व्हाट this boy is learning. Maybe he doesn't know this big word of epistemology, but this is what this boy is learning. And what else is he learning? How to stand up. This is very important. How to stand up is very important, because this means that no matter what you lose, you have to forget about it and you have to start life afresh. तुमको उसके बिना ही या उसके सब्स्टिट्यूट के साथ में लाइफ शुरू करनी पड़ेगी। ठीक है, नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। और ये बच्चा धीरे धीरे जान रहा है जो हर आदमी को आगे न पीछे, आगे या पीछे, पहले या बाद में जानना ही पड़ता है। और मोस्ट नो मैनी डेज, ज़्यादातर लोग को कई बार एक्सपीरियंस होता है। ये क्या एक्सपीरियंस होता है? हाउ टू स्टैंड अप, हाउ टू स्टैंड अप, हाउ टू स्टैंड अप। ये इन्होंने रिपीट किया है। ठीक है, रेपिटेशन नहीं लिखा है मैंने यहाँ पे, बट रेपिटेशन तो इम्पॉर्टेंट है। ये लेसन सीखना बहुत ज़रूरी है, हाउ टू स्टैंड अप। ठीक है, तो क्योंकि हमने पोम पढ़ी है इसको अभी, पहले मैं सोचती हूँ कि हम थीम्स पहले कर लेते हैं, फिर हम इसके फिगर्स ऑफ स्पीच करेंगे। आई होप पोम आपको समझ में आई होगी। अब थीम्स हैं, कमिंग ऑफ एज पोम कहते हैं इसको। कमिंग ऑफ एज मतलब क्या होता है? जब भी एक यंग पर्सन या यंग एडल्ट अपनी लाइफ में कुछ ऐसा चीज़ सीख लेते हैं विच इज़ गोइंग टू डिफाइन देयर लाइफ फ्रॉम देम
then onwards, or something which is going to remain with them all their lives, तो उसको कहते हैं कमिंग ऑफ एज। तो कमिंग ऑफ एज पोम है। एक और चीज़ जो हमको बताते हैं लॉस इज़ इनएविटेबल, ये हमको बता रहे हैं। बॉल्स विल बी लॉस्ट, पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। ठीक है, ये सिखाते हैं हमको। फिर ये बता रहे हैं डीलिंग विथ लॉसेस, ये हमको 2 बार बता दिया इन्होंने। हाउ टू स्टैंड अप बता दिया, हाउ टू डील विथ लॉस। और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्यों? क्योंकि ये बोलते हैं he senses first responsibility in a world of possessions। आप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिना इस दुनिया में, इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई है ये पोम। अच्छा, ये जो पोम है यहाँ पे तो इसकी 18 लाइन्स ही हैं। एक्चुअली इस पोम की जो ओरिजिनल लाइन्स हैं, ओरिजिनल पोम है उसमें है आप देख सकते हैं क्या ये सारी लाइन्स। Wait, I'll try to show. You can take a screenshot of this and try and read these lines। ये बाकी की लाइन्स हैं, ये एक 25 लाइन्स की पोम है। ये बाकी की लाइन्स हैं, बाद में ना ये आई हो गया है ना, एज इफ़ ये बच्चा बोल रहा है। आई फर्स्ट पर्सन नैरेटिव हो जाता है। ये मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी ये पढ़ाकर, क्योंकि ये तो पोम का हिस्सा नहीं है, बट हाँ बताना, क्योंकि वो मुझे पता है कि ये लाइन्स हैं उसके आगे, तो मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, अब इनके फिगर्स ऑफ स्पीच में एनाफोरा है। एनाफोरा जो वर्ड्स रिपीट होते हैं, what is, beginning of the line merrily। ठीक है, here and ये एनाफोरा के एग्जाम्पल्स हैं। इमेजरी यहाँ पे as he stands rigid, trembling, staring down all his young days, this is the image। Here also in the beginning the image of the ball bouncing and the child playing, ये इमेजरी है। फिर repetition है, how to stand up है ना, ये repetition है। balls will be lost, ये भी repetition है ना। फिर है इमेजरी, मैंने 2 बार लिख दिया है। और सिंबलिज्म है, सिंबलिज्म मैंने पोम में समझा दिया है। बॉल स्टैंड्स फॉर द मटेरियल पोजेशंस एंड एवरीथिंग दैट वी हैव इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, ओके। and the boy stands for all of us, okay, all of us who live in this material world, who possess something or the other, whether it is things or relations। then caesura क्या होता है? जब पोम के बीच में, लाइन के बीच में कोई ये पंक्चुएशन आता है, यहाँ आया है, यहाँ एक पंक्चुएशन आया है ना। जब पोम के बीच में, यहाँ पे लाइन के बीच में एक ये फुल स्टॉप यहाँ आ गया है। लाइन के बीच में जब थॉट ब्रेक होता है और नया थॉट शुरू होता है, उसको क्या सेस्यूरा कहते हैं। और किस चीज़ से पता चलता है हमको? ये यहाँ से, ये देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप, यहाँ फुल स्टॉप आया है, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन मार्क आया है। दिस इज योर पोम, द बॉल पोम। I hope I have covered everything, okay। You can take some screenshots also and keep these notes with you. You can copy them as I'm teaching, you can copy them in your reader, okay, so that you know revision becomes easy। all right, chalo, so with this I'll say bye to you for now। all the best for your preparation and thanks so much for watching। bye bye।